Hi guys, this is Dhananjay here from Moksh, and this we are going to discuss today journey of a doctor. ये basically आपकी जो टेंथ स्टैंडर्ड में जो ड्रीम था आपका, नाइन्थ टेंथ में जनरली आपको ऐसा फील होता है कि आई शुड बिकम अ डॉक्टर। वो जो पूरी जर्नी है उसके बारे में अभी तक आपको पता नहीं है। शायद आपको लगा होगा कि भाई मेरे को नीट है, उसी से डॉक्टर बन सकता हूँ। धीरे धीरे जब 11th और 12th आया तो पता चला कि यार नीट तो एक बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन है। अभी मुझे लगा था कि नीट के थ्रू मिलता है, बट ये तो ऐसा चीज है कि नीट के थ्रू 98% को नहीं मिलता, वो वाला चक्कर है। करेक्ट। सो 16 लाख लोग एग्जाम देते हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस कैन एक्सेप्ट ओनली 35,000 स्टूडेंट्स इन इंडिया, और दैट ऑल्सो करीब करीब 17,500 ओपन कैटेगरी और 17,500 reserved category. You can imagine the situation. 16 lakh students trying for 35,000 seats. This is the kind of a situation that you now realize that almost 98% of the students who are aspiring to become a doctor via NEET, they are taken out of, they are completely filtered in the system. Only 35,000 will come out with the flying colors. So what happens then? What happens to 16 lakh students? Let's understand that first. It's not easy journey. 2 साल मेहनत करने के बाद में पूरी मेहनत 11th और 12th पूरा मेहनत किया आपने, काफी घंटे निकाले पढ़ाई के लिए, नीट की तैयारी की। फाइनल रिजल्ट क्या आता है? 35 to 36,000 डॉक्टर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, करीब करीब 31,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कोशिश करते हैं। बट जब एक्चुअल में पता चलता है कि यार ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, दिस कॉस्ट यू अराउंड 60 to 70 lakhs, then what happens? Around 40% seats go vacant. Now most of the people think that getting into a medical seat is not, it's very difficult, but here the money plays the role, because lots of seats are sold out with money. It's not necessary that you have to be on the merit of NEET and all those things. I think most of the people know how it functions. The deemed university, the management quota, capitation fee all along, the expensive yearly fee of the private colleges. So all those things should be known to you. So not every seat fills up. Those who want to become a doctor finally decide, yeah, even if I have to go abroad, I will become a doctor. So Medical Council of India, which is now being called National Medical Council, NMC, they have given the list of universities where you can become a doctor and practice back in India. This is how it functions. So maybe there are around 250 colleges here, 260 colleges here, maybe around 240 colleges here, and across the world there are another 450 colleges which are approved by the Medical Council of India, and you can study there. Most of the students who do not get through merit or do not have the money, there are more people like this in India than the people who have the merit or the money. Correct? As we discussed, 98% of the people are there who do not have merit. So they are the people who will try to repeat, or they will give up and then finally decide I'll go abroad. Many of the students have understood in the first year itself, if I'm standing at 200 plus, it's going to be difficult to reach up to 560 plus and all. I do not want to waste further time, and I directly want to become a doctor. There are so many places where I can go and become a doctor. So 2018 और 2019 में थोड़ा सिस्टम में भी फर्क आ गया, रूल्स बदल गए, उसकी वजह से बहुत बड़ा सर्ज आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी फॉरेन जाना चालू कर दिए हैं। सो 15,000 स्टूडेंट्स करीब करीब 2019 में फॉरेन चले गए। करीब 10 लाख स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 16 लाख में से जो हाथ ऊपर कर दिए, भैया मेरे बस का बात नहीं है, आई डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं इस रेस के बाहर हूँ। देयर इज अ स्पेशल प्रोडक्ट, हम आइडियाज देंगे ऐसे लोगों के लिए कि जिसने अपना सपना खत्म कर दिया। इनको भी ऑप्शन है डॉक्टर बनने का। जब आप बीएससी करते हो तभी भी आप वो बीएससी के इयर्स यूज कर सकते हो एज अ प्री मेडिकल इयर्स। इफ यू आर थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग बीएससी, प्लीज डू नॉट लीव योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर। आपके पास समय है, आपके पास वक्त है, बीएससी का करियर आपको कहाँ नहीं लेके जाने वाला है। सो उस सिचुएशन में बेटर है कि अपना सपना बरकरार रखें, and you continue with dreaming about becoming a doctor and you do become a doctor.
So this is the kind of a story that every year it happens. Around 15,000 go abroad, which is a large number of students going to various countries. Actually speaking, ये इतना, you don't have to think that फॉरेन बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि फॉरेन बहुत अच्छा है। ऐसा है कि लोगों को कुछ पता नहीं है, इसलिए लोग फॉरेन चले जाते हैं, क्योंकि एजेंट्स जो होते हैं, एडमिशन एजेंट्स, वो आपको पटा लेते हैं, चलो तुझे डॉक्टर बनना है, चलो मैं फॉरेन भेज देता हूँ, और आप वैसे ही तैयार होते हो जाने के लिए, बराबर है। सो ये जो चीज हुआ 2018 में और 19 में, जो फर्क आया वो ये आया। 18 में कैसा था, अगर आप इंडिया में एमबीबीएस करते हो कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है ना, तो आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिलता था प्रैक्टिस करने का। यू कैन गेट, सो डिग्री एक अलग चीज है मेडिसिन में, एमबीबीएस जो होता है, लाइसेंस एक अलग चीज है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया देता है आपको। डॉक्टर बनते हो तो वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर देता है ताकि आप पेशेंट्स को देख पाओ ऑफिशियली। सो डिग्री एंड लाइसेंस दो अलग चीजें हैं। जब आप इंडिया में करते थे तब आपको डायरेक्ट लाइसेंस सिस्टम था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने डिग्री ले ली, आपको लाइसेंस मिल जाएगा 2018 में। पर अगर इफ यू आर डूइंग एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड, then you had to give one examination. You were being screened and tested. It was also called a screening test, MCI screening test. Okay, and this test was being taken, you have to qualify, and then only you get a license. In 2019 the rule changed, whether you are from India or abroad, whether you are in government through merit, whether you are in private college पैसा देके, whether you are in deemed university, मैनेजमेंट कोटा से क्यों ना हो, आप सभी लोगों को इंक्लूडिंग फॉरेन से आते हो, एक कॉमन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट, और उसमें क्वालिफाई करोगे तो ही लाइसेंस मिलेगा। अब स्टोरी पूरी बदल गई। 2019 में इंडियन पार्लियामेंट में ये चेंज हो गया, राज्यसभा में ये बिल पास हो गया कि भाई अभी हर डॉक्टर को एक एग्जिट टेस्ट देना है, लाइसेंस एग्जामिनेशन देना है, जैसे बाकी सब फॉरेन में कंट्री में होता है। यूएस में कैसा होता है, यूएसएमएलई, वैसे ही इंडिया में नेक्स्ट होता है, ठीक है। ऐसा ही एफएमजी जो सिर्फ फॉरेन वालों के लिए था पहले, जब 2019 में ये रूल चेंज हो गया, तब सबको सडनली रियलाइज हुआ कि यार 70 लाख रुपया देके मुझे इंडिया की गवर्नमेंट में प्राइवेट कॉलेज में से क्यों लेना है, अगर मुझे इंडिया में मेरिट से मिल गया तो बढ़िया है, बट अगर प्राइवेट में मुझे 70 लाख रुपया देके मुझे मेडिकल सीट मिलेगी और फिर वापस वही लाइसेंस एग्जामिनेशन में पास करना है और तभी लाइसेंस मिलेगा, तो वो रिस्क से तो बेटर है मैं अब्रॉड चला जाऊं और वहां पे 15-20 लाख में मैं एमबीबीएस खत्म कर लूं, और वहां से भी वही रूट मिलने वाला है मुझे, तो क्यों ना मैं इतना, क्योंकि इतने ही पैसों में तो मैं यूएसएमएलई की एग्जाम देके मैं यूएस पहुंच जाता हूं। मैं, यू जस्ट नीड अराउंड 40 लाख रुपीज टू रीच आउट टू मेडिकल पीजी इन यूएसए। आप बिलीव नहीं करोगे कि जब आप मेडिकल पीजी इन यूएसए करते हो तभी आपको 1.5 करोड़ रुपया स्टाइपेंड मिलता है 4 साल में। 4 साल का पीजी होता है वहां पे, ठीक है ना, एवरेज। और जबकि इंडिया में जब पीजी करते हो प्राइवेट में आपको 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ता है। दिस इज द डिफरेंस। इंडिया के अंदर प्राइवेट कॉलेज में पीजी करने का 1.5 करोड़ दो, या यूएस में 1.5 करोड़ कमाओ। जब वहां पे रेसिडेंसी करते हो, मतलब कि हॉस्पिटल में आप पीजी की डिग्री कमाते हो एज अ रेसिडेंट डॉक्टर, तभी आपको वहां पे स्टाइपेंड मिलता है। प्रॉब्लम यह है कि स्टाइपेंड तो इंडिया में भी मिलता है बट सिर्फ 5 लाख मिलता है साल का, पर जब अंदर जाना है प्राइवेट में तो 1.5 करोड़ का आपको कैपिटेशन फी लग जाता है। ये मिनिमम है। रेडियोलॉजी जैसी स्पेशल ब्रांच चाहिए, ऑर्थो चाहिए तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ ऐसा सब खर्चा है। और किसको सिर्फ एमबीबीएस बनना है, आप ये भी सोचो, किसको सिर्फ एमबीबीएस बनना है? सबको स्पेशलिस्ट बनना है। सबका सपना आगे तक का है, 9-10 साल भले लगे, मैं या तो डर्मेट बनूंगा या ऑर्थो बनूंगा या गायनेक बनूंगा या न्यूरो बनूंगा या कार्डियो बनूंगा। कोई बोलेगा ऐसा मैं सिर्फ फैमिली फिजिशियन बन के मुझे छोटी सी दुकान खोल के बैठने चाहता हूँ, ऐसा कोई है अपने इसमें? let me understand whether you are able to understand the whole career path now.
सबसे पहले बताओ लाइसेंसियोर एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। एक चीज सभी को बता दूं, यही नेशनल एग्जिट टेस्ट में मेरिट में आओगे तो पीजी की सीट भी मिलेगी। अब इतना इंपॉर्टेंट चीज है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम भी है आपका। जो इस एग्जाम को इंपॉर्टेंट समझेगा वो इस एग्जाम का प्रिपरेशन भी करेगा। जैसे आपने 11th और 12th में नीट की तैयारी की, वैसे ही आपको एमबीबीएस के 5 साल के अंदर, वेदर यू आर स्टडिंग इन इंडिया और अब्रॉड, आपको नेक्स्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। या तो फिर यूएसएमएल करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो लाइसेंस लेना है। करेक्ट है। आई एम गोइंग टू क्लोज दिस एंड लेट मी शो यू how many people have said it's the most important examination. 71%। 29% of the students say sir may be, पहले देखते हैं ना, पहले एमबीबीएस कर लेंगे, बाद में लाइसेंस की एग्जाम तो 5 साल बाद में है, अभी से क्यों इतना टेंशन लेके घूमे हम लोग। करेक्ट। ये कैजुअल अप्रोच मेडिसिन में नहीं चलता। मैं अभी से इसीलिए मैंने बताया आपको, एमबीबीएस पढ़ने से पहले करियर की प्लानिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ पढ़ाई से डिग्री मिलती है, पर भाई डिग्री से आपका कोई नहीं भला होने वाला, क्योंकि लाइसेंस चाहिए, डिग्री से कुछ नहीं होने वाला। तो लाइसेंस सिर्फ तैयारी से होता है, पढ़ाई से नहीं होगा। मैं आपको अभी एक्चुअल सिचुएशन बताता हूं कि ये आपके मेबी वाले जो चक्कर हैं वो सारे स्टूडेंट्स का हाल क्या हो गया। सो 2015, 16, 17, 18 ये सारे साल में लाइसेंस एग्जामिनेशन तो हुई है। जितने लोग फॉरेन से आए हैं, लेट्स से 2015 से 18 तक के कितने लोगों ने एग्जाम दी और उसमें से कितने लोग पास हुए। हाउ प्रॉब्लमेटिक दिस लाइसेंस एग्जाम कैन बिकम। 2015, 16, 17, 18 4 years, 61,418 students gave examination, 8,731 passed, only 14.22%. The license examination for those doctors who came back from abroad. Can you believe that more than 52,687 doctors, they failed FMG? दो कारण थे, कैजुअल अप्रोच में भी। देखेंगे सर, 5 साल बाद की एग्जाम है, अभी से क्यों प्रेशर कर रहे हो। अरे भैया, 1 से 5 साल में 19 सब्जेक्ट होते हैं। जो सब्जेक्ट यहाँ सिखाया जाता पहले साल में वो भी यहाँ पे लाइसेंस एग्जाम में पूछा जाता है, जो दूसरे साल में सिखाया जाता है वो भी यहाँ पे होता है। तो एनाटॉमी इज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट, पैथोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट, फार्मेकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट, गायनेक इज अ पार्ट ऑफ, ओबीजीवाई आएगा यहाँ पे, जनरल सर्जरी आएगा, सारे आएंगे यहाँ पे 19 के 19 सब्जेक्ट। आप ये सोच रहे हो कि यार मैं पहले साल से क्यों तैयारी करूं, आराम से करता हूं। एमबीबीएस पूरा में क्यों 5 साल का तैयारी करना पड़ता है नेक्स्ट का लाइसेंस का या यूएसएमएल का। भाई अगर आप नहीं करते हो तो ये हाल होता है। ये हाल में क्या हो गया, ये सारे डॉक्टर्स हैं, जिसने जिसने ये एग्जाम दी वो सारे डॉक्टर थे, सबके पास डिग्री थी, एमसीआई की अप्रूव्ड लिस्टेड यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। सबने 5 से 6 साल निकाला पढ़ाई के, सबने वहां का पास किया एग्जाम सारे, सबने 15 से 20 लाख रुपया खर्चा किया, अपना लाइफ का मेन प्राइम टाइम उसके ऊपर स्पेंड किया। बराबर है। 18 से लेके 24 साल घर से दूर रहे, एटलीस्ट 23 ईयर्स, खाना खुद पकाया, तकलीफें ली, हर साल आना जाना, पैसा भेजना, ये सब करने के बाद में एंड रिजल्ट जब इंडिया आए एफएमजी में फेल हो गए। कितने? 52,000, 86% फेल। दो कारण है, एक मैंने बताया मे बी, जो आपका 29% लोगों ने बताया ना मे बी, क्योंकि उनको पता ही नहीं है आगे क्या आने वाला है। और दूसरा कारण है एडमिशन एजेंट के पास जाके उल्लू बनना। ये दो कारण फालतू कॉलेजेस में उन्होंने डाल दिया, आपको उल्लू बना दिया। आपके गांव में कोई किर्गिस्तान जाता है तो उसके पीछे आप भी चले गए, आपके गांव से कोई जॉर्जिया जा रहा है तो उसके पीछे आप भी चले गए, किसी एजेंट ने पैसा लूट के आपको करियर बेच दी। ये वाले चक्कर में से पूरा इंडिया में बहुत तकलीफ होती है। स्टूडेंट्स को 18 साल की उम्र में रिसर्च करने की आदत इंडिया में नहीं है। अगर आज की तारीख में भी अगर 1 घंटे का रिसर्च कर लो
तो आपको कोई भी उल्लू नहीं बना सकता। आपका डिसीजन, आपका करियर पूरा आपके हाथ में है। सिर्फ आपको अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करना है, रिसर्च करना है और सही तरीके से फाइनल डिसीजन पे जाना है कि मैं जाऊं तो किस में जाऊं, क्या मैं एमबीबीएस तक करूं या मेरे लिए पीजी इंपॉर्टेंट है। अगर पीजी इंपॉर्टेंट है तो क्या मैं तैयारी साथ में करूं, पूरी करियर का प्लान करके जाऊं और ऐसे ही मस्ती में पहुंच जाऊं, पीजी बीजी की जरूरत नहीं, एमबीबीएस करके खत्म कर लूंगा। अगर यही है तो आपको अपने हिसाब से अभी देखना पड़ेगा कि लाइफ आप खुद बनाने वाले हो। किसी और के हाथ में अगर लाइफ दे दी तो फिर खत्म है। इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे एक एक एजेंट बैठे हैं जो आपके करियर को बर्बाद कर सकते हैं। सो देन इन दैट केस यू विल हैव टू थिंक ऑन योर ओन, you have to do your own research, you have to pass through all these things, then only you will be able to make the right decisions. 79% of the people have understood that agar if I don't do my career planning till PG, I will never be able to reach because I have to study for PG. Next का ही थ्रू आप PG का सीट मिलने वाला है। अगर आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि न्यूज पढ़ो। चलो लेट अस अंडरस्टैंड न्यूज। हम राज्यसभा का वो बिल पढ़ते हैं कि जिसमें हमको बताया गया है कि मेरी करियर कैसे बनने वाली है। National Medical Commission bill passes Rajya Sabha test. Healthcare on the verge of landmark changes. This was done in August 2019. Exact अभी एक साल भी नहीं हुआ ये नए रूल को आने को, और ये नए रूल के हिसाब से it's getting downloaded, so kindly hold on. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है पूरे वेबिनार की कि आप अपनी करियर क्या उस 52,000 डॉक्टर्स के जैसा निकालना चाहते हो कि जो आज की तारीख में घर में बैठे हैं। दे आर नॉट इवन इन कोरोना टाइम, दे आर नॉट एबल टू सर्व द पेशेंट्स। इतना बुरा हाल है क्योंकि इनके पास अभी लाइसेंस नहीं है। सो आप पढ़ सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर क्या नया रूल आया। की प्रोविजन ऑफ द बिल, चाहे फॉरेन से आओ या इंडिया में करो, यूनिफॉर्म मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड हो गया है। अगर इंडिया में कर रहे हो तो एक ही फाइनल ईयर की एमबीबीएस की एग्जाम होगी, इसका नाम होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट। इससे दो चीजें होंगी, आपकी पीजी के भी कोर्स में एडमिशन होगा अगर मेरिट में आए, और अगर क्वालिफाई कर लिए तो प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी मिल जाएगा इंडिया में। अगर यही चीज आप फॉरेन में करते हो, इट ऑल्सो प्रपोजेस final year exam to be treated as an entrance exam for PG and screening test for the students who graduated in medicine from foreign medical colleges. चाहे आप इंडिया से हो या अब्रॉड से हो, आप आराम के साथ में इसको पास कर लो, लाइसेंस भी ले लो और पीजी की सीट भी ले लो मेरिट में आके। अब अगर आपको सामने पीजी बनना है, एमडी एमएस बनना है, सर्जन बनना है, आपको समझ में आ गया होगा इंपॉर्टेंट इट इज टू प्रिपेयर फॉर द लाइसेंस एग्जामिनेशन, वेदर इट्स इन इंडिया, यूएस, जर्मनी। यही 3 कंट्रीज के लिए मैक्सिमम डॉक्टर्स ट्राई करते हैं, करेक्ट है। सो इस कंट्रीज के लिए अगर आपको, या यूके जहाँ पे प्लैब होता है, यूएस जहाँ पे यूएसएमएलई होता है, या इंडिया जहाँ पे नेक्स्ट का एग्जाम अभी लगने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। अगर ये सब चीजें आपको पता हो तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी तरह आप सेटल कर सकते हो, ठीक है। लेट अस नाउ, लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ अवर प्रेजेंटेशन। सबसे पहला आपको ये समझना है कि मुझे अगर फॉरेन भी जाना हो या इंडिया में भी जाना हो, मुझे नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। दिस इज द रूल, बिकॉज इन 2019 there were 3 rules which came in. Okay, one rule, I'll tell you the 3 major rules we changed. It is over here, mentioned over here, just read it. एक, आपको नीट क्वालिफाई करना जरूरी है, वेदर यू आर गोइंग टू स्टडी इन इंडिया और अब्रॉड। मतलब एंट्री पॉइंट एमबीबीएस में कॉमन है, नीट क्वालिफाई करो तो एंट्री करो, ठीक है ना। एमबीबीएस में एंट्री करो, अगर क्वालिफाई नहीं है तो एंट्री नहीं करोगे। और एग्जिट कैसे करोगे, नेक्स्ट के थ्रू। सो एमबीबीएस में जाना है, नीट क्वालिफाई करो, बाहर निकलना है, नेक्स्ट क्वालिफाई करो, और पीजी में एंट्री चाहिए तो नेक्स्ट की मेरिट में आओ। तो ये 3 रूल्स ने पूरा सिनेरियो बदल डाला अभी।
तो नीट करने के लिए मोक्ष क्या करता है, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सबसे पहला पता होता है कि यार मेरा स्टेटस क्या है, आज की तारीख में कितना आने वाला है मुझे, क्या मैं 200 वाला स्टूडेंट हूँ, या मैं 300 वाला हूँ, 400 वाला हूँ, 500 वाला हूँ, या 550 वाला हूँ, या बिलो 150 हूँ, किधर हूँ मैं, वेयर इज माई स्टेटस। इतनी सारी कोचिंग क्लास में टेस्ट सीरीज दे दे के आपको सबको पता है। अगर आप इस रेंज में हो तो नेचुरली है कि अभी आपका टाइम आ गया है कि आप अब्रॉड का सोचना चालू कर दो। पर अगर आप इस रेंज में हो तो मैंने बताया था आपका प्लान ए है इंडियन गवर्नमेंट कॉलेज। डॉक्टर तो बनना ही है, तो ऐसे पैशनेट लोग, चाहे नीट में कम आ गया, 26 जुलाई को एग्जाम दी, अगस्त एंड में रिजल्ट आया, सितंबर अक्टूबर में काउंसलिंग होगी, और चाहे इंडिया हो या अब्रॉड हो, सबके क्लासेस नवंबर में इस टाइम चालू होंगे, क्योंकि कोरोना के लिए वजह से 2 महीना डिले हो गया है, बराबर है। तो इस सिचुएशन में आपको नीट क्लियर करने का गारंटी, हम लोग क्वालिफाई करने का, हम लोग ने कपिल सर को बोला नीट प्रेप वालों को कि सर कैसे भी करके एक ऐसा मास्टर क्लास बनाओ कि जो बायोलॉजी करके नीट क्वालिफाई कर ले, एटलीस्ट डॉक्टर बनने का गारंटी मैं देता हूँ फॉरेन में, क्योंकि इट्स अ गारंटीड एडमिशन सिस्टम। So every MOOC student who registers a medical seat abroad, they also get a free master class from NEET Prep. NEET Prep of course इंडिया का सबसे बड़ा कोर्स है, सबसे फेमस कोर्स है, जहाँ पे कम से कम आज की तारीख में 25,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। सो ऑल ऑफ यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट अगर आप नीट क्वालिफाई करते हो तो आपको एमबीबीएस अब्रॉड भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन रहता है। कॉस्ट एकदम कम है, आराम से 5 साल में पैसा देना है। ऐसा नहीं कि 20 लाख रुपया खर्चा है तो 20 का 20 लाख रुपया एक साथ में खर्चा करना है। और ये भी इसके अंदर कई यूनिवर्सिटीज ऐसी है, इसमें तो रहना खाना पीना सब कुछ आ जाता है, कोई अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। एमसीआई की अप्रूव्ड लिस्ट में है, जैसे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस इंडिया की हैं वैसे ही ये फॉरेन की हैं। अब्रॉड जाने वाले 15,000 स्टूडेंट हैं, 450 कॉलेजेस हैं जो एमसीआई के अंदर अप्रूव्ड है। प्रॉब्लम यही है कि जाने लायक सिर्फ 50 कॉलेजेस हैं, यही प्रॉब्लम। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 450 प्लस कुछ कॉलेजेस अप्रूव्ड लिस्ट में डाली है, ठीक है। और ये कोर्स के अंदर डालने के बाद में हमने जब एसेस किया तो इसमें सब कुछ मिक्स कर दिया है। कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, कोई प्राइवेट कॉलेज है, कोई 200 साल पुरानी है, कोई कल ही खुली है, इसमें कोई मजा नहीं है, फिर भी वो अप्रूव्ड लिस्ट में है। कोई किसी में इंग्लिश में सिखाया जा रहा है, किसी में रशियन में सिखाया जा रहा है। अगर ऐसी कॉलेजेस होगी तो आप कैसे, आप और कोई भी, अभी पाकिस्तान में भी है, समझ गया आप, किर्गिस्तान जैसे बैकवर्ड कंट्री में भी है, जॉर्जिया जैसे फालतू छोटे से कंट्री में भी है, और रशिया जैसे सुपर पावर में भी है, यूक्रेन जैसे यूरोपियन कंट्री में भी है। सो आपको कंट्री का भी स्पेसिफिक नहीं देखा, कंट्री कितना आगे है या कंट्री कितना अंडर डेवलप्ड है वो नहीं देखा, कॉलेज कितनी बेकार है, प्राइवेट है गवर्नमेंट है, तो हमको वो स्क्रीनिंग करना पड़ेगा ताकि हम गलत जगह पे न बैठे। कोई भी आदमी आपको बोल दे, प्रमोट करके एडवर्टाइजमेंट करके बता दे कि यार देखो ये कॉलेज एमसीआई के लिस्ट में है, आप भी चले जाओ, इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। अरे भाई लास्ट ईयर कोई उल्लू बन के चला गया तो मैं क्यों उसके पीछे पीछे चलूं, मेरे पास तो ताकत है, गूगल है, मैं चेक कर सकता हूं, मैं रिसर्च कर सकता हूं, आई कैन कम टू अ कंक्लूजन वेदर दिस सूट्स मी और नॉट। करेक्ट है। सिंपल, मैंने 4 रूल दिए हैं। अब हम अगर कोई भी यूनिवर्सिटी चूज करेंगे, पहले तो हम कंट्री देखेंगे, भैया कंट्री कैसी है, डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। डेवलप्ड कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, एमिनिटीज सब कुछ अलग लेवल पे मिलेगा। अंडर डेवलप्ड में कोई सिस्टम नहीं रहेगी, चोरी चकारी ज्यादा रहती है, ठीक है, करप्शन रहता है, ऐसे ही फेल कर देते हैं। उसके अंदर डेवलप्ड कंट्री है तो क्या हो गया, उसमें आपको फालतू कॉलेजेस भी मिल सकती है। इंडिया में एम्स भी है और छोटे से गांव में प्राइवेट कॉलेज भी है, करेक्ट है। आपको चूज करना है कहाँ पे जाना है, कहाँ पे निकालना है, तो उसके अंदर की टॉप यूनिवर्सिटी चूज करो और लाइसेंस एग्जाम की तैयारी करो। फालतू कोई भी एडमिशन एजेंट की जरूरत नहीं है।
डायरेक्ट आप अपनी सिलेक्शन करके जा सकते हो। आपको अपनी करियर सही तरीके से प्लान करनी है, दैट्स ऑल। अगर आपने इतना कर लिया तो आगे और कोई नहीं रोक सकता। तो ये एडमिशन एजेंट्स कैसे बच्चों को बेचारे को उल्लू बनाते हैं, इतने सालों से गलत जगह पे क्यों ये 450 यूनिवर्सिटी जो एमसीआई ने अप्रूव की है, कैसे बच्चे लोग इसमें गलत तरीके से पहुंच जाते हैं। तो इसके 3 तरीके रहते हैं। एक जो आपके सिटी के अंदर छोटे मोटे जो एजेंट रहते हैं, करेक्ट है, जो 3-4 महीना ऑफिस खोलते हैं, पैसा लूट के फिर गुम हो जाते हैं। ये अनब्रांडेड, गाइडेंस नहीं देने वाले, बड़ी बड़ी बातें झूठ बोल बोल के बच्चों को उल्लू बना के भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने रिसर्च नहीं किया होता स्टूडेंट्स ने, इसलिए वो फंस जाते हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो एजेंट का यूट्यूब के ऊपर फेक प्रमोशंस करते हैं, झूठ बोल बोल के। मैं आपको बताऊंगा कैसे पता चल जाता है कि कौन सा एजेंट फेक है, कौन सा एजेंट सही बता रहा है। और तीसरा, क्योंकि ये 450 कॉलेजेस में से 400 कॉलेज बकवास है और 50 ठीक है, अच्छी है, फॉरेन में भी ये हाल है। तो ये जो बकवास कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं वो डॉक्टर नहीं बन सकते, तो वो क्या बनते हैं, एजेंट बन जाते हैं। वो यहाँ आके आपको उल्लू बनाते हैं कि देखो मैं तो पढ़ रहा हूँ, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तू भी चल यहाँ से। तो इन एज स्टूडेंट्स लोगों से बच के रहो, एजेंट्स लोगों से बचते रहो, जो स्टूडेंट्स बन के पोज कर रहे हैं, जो एजेंट हैं। सही इंफॉर्मेशन को निकालो ताकि आप कर सको बात कि भाई ये कौन सा सही है, ठीक है ना। तुबा हरीफ, आई एम सॉरी बट दिस इज अ कॉमन वेबिनार, so you can definitely leave if you feel that you know this is not your concern, because ऐसा होता है ना तुबा कि 98% को एडमिशन नहीं मिलने का गारंटी है नीट के थ्रू, और 2% को ऐसा है कि मुझे मिल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा है कि मुझे 550 के ऊपर मिलने वाला है, तो यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम ऑन दिस वेबिनार एट ऑल, ठीक है। दिस इज फॉर द पीपल व्हिच इज अ मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर अफ्रेड that they might not be able to crack this examination to this level, okay. So in that case they are looking for all alternatives, and these can be one of the best alternatives, they understand the whole requirement. Secondly, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी तुबा कि नेशनल एग्जिट टेस्ट चाहे आप इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, ये आपको रहेगा। सो दिस इज नॉट अ नीट का कोचिंग क्लास नहीं है, ये आपकी जर्नी बता रहा है डॉक्टर की कि आप कैसे पीजी तक पहुंचोगे, ठीक है। ये आपके सपने को कैसे रास्ता मिलेगा उसके बारे में वेबिनार है। सो इफ दिस डजंट मेक सेंस टू यू तुबा, यू कैन डेफिनेटली लीव, ओके, नो प्रॉब्लम ऑन दैट, you can focus on your NEET exam that way. So finally, coming back to our situation, अगर हमको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी हो तो कौन सी करेंगे, क्या हम गवर्नमेंट कर, अब हम वही देख रहे हैं 450 में से कचरे को हटाना कैसे है, अच्छी यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करनी है। खुद को आपके पास अगर आपके पास खुद के पास अगर दैट फॉर्मूला अवेलेबल है तो आप कभी किसी से उल्लू नहीं बन सकते। फॉर्मूला सिंपल है, चूज करो गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट को चूज मत करो व्हेन यू गो अब्रॉड। चूज पुरानी एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी करो, नई नई जो 2, 4, 5, 10, 20 साल पहले खुली है उसकी कोई फैसिलिटीज नहीं होती, उसका कोई भी हॉस्पिटल में पेशेंट्स का फ्लो नहीं मिलेगा, उसमें टीचर्स को इंग्लिश नहीं आती, ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे जैसे यूनिवर्सिटी पुरानी होते जाती है उसमें वेल एस्टेब्लिश्ड आपको सिस्टम्स मिलती है। और तीसरा, व्हेन यू गो टू रशिया, when you search for universities in Russia, you have to look for English language courses. सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों को पता ही नहीं है कि रशिया में रशियन लैंग्वेज वाले कोर्सेज हैं, बट एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी करके आपको उल्लू बना के यहाँ से लेके जाया करते हैं। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, इतना सिर्फ 3 रूल लगा दो अपने इसमें, तो आपके 450 में से 400 कॉलेजेस आपके निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे आप बोलोगे सर कैसे पता चलेगा मुझे, एक सिंपल सा हिसाब है, आप वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स को आप कर सकते हो, यहाँ से आपको हर यूनिवर्सिटी की, ओके, हर यूनिवर्सिटी, आई कैन टेल यू एवरीबडी दैट आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, वो क्वेश्चन मार्क
आप डेफिनेटली आप if you can click on that, definitely you'll be in a position to ask me any question that you wish to have. So guys, this is how you search. Google के ऊपर वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स अवेलेबल है, आप कभी भी इसको चेक कर सकते हो। अभी तो आप देख सकते हो कि इसमें जून 19 से लेके 21 तक तारीख को मेंटेनेंस के अंदर है। ये अनअवेलेबल रहेगा, I think from 7 p.m. to June 20th, approximately 6 p.m. तक। Let us try if it is working right now, then we can check which universities, how do I select my university। Let's say हमको यूक्रेन जाना है, जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं इंडिया से, बराबर है। लेट अस से आपने एक वीडियो देखा जहाँ पे तरास करके एक यूनिवर्सिटी का प्रमोशन देखा, बहुत अच्छे यूट्यूब पे प्रमोशन करेंगे वो लोग, आएंगे, देखो बच्चे कितना अच्छा बोलते हैं, आप भी आ जाओ, आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको इन्फ्लुएंस करना चाहेंगे, और फाइनली आपको जाने के बाद में पता चलेगा यार ये तो उल्लू बना गया हमको, ये तो सिर्फ 2 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मेडिसिन सीख रहे हैं। वो यूनिवर्सिटी चाहे 100 साल पुरानी हो, बट मेडिसिन तो 2 साल 3 साल पहले ही सीखा चालू किया है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी में जाके क्या क्यों मैं जाऊं मैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये यूजलेस है, ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है। मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना है कि जो पब्लिक हो और 100 साल 150 साल 200 साल पुरानी हो, जिसको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस हो उधर, ऐसी भी कॉलेज मिलेगी, और फालतू प्राइवेट कॉलेज भी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और एक यूनिवर्सिटी देखूं इसी कंट्री के अंदर, तो ये तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, और इसको मेडिसिन का प्रोग्राम चालू करने को 125-24 साल हो गए। अब इसको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है कि मेडिसिन कैसे सिखाया जाता है, इसको प्रैक्टिस है। इसने थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स ग्लोबली प्लेस किए हैं, तो मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में जाऊं कि जो एक्सपीरियंस्ड है और गवर्नमेंट है। मुझे प्राइवेट वाली कॉलेज या नई नई कॉलेजेस में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसी कंट्री के अंदर आपको दूसरे प्राइवेट कॉलेज भी मिलेंगे, वर्ल्ड डायरेक्टरी से आपको हर चीज का गारंटीड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। आपके पास प्राइवेट 1992 कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी, मत करो ऐसे फालतू कॉलेजेस को। I hope you are able to understand now that every country, कोई भी कंट्री का चेक कर सकते हो आप। जैसे बहुत सारे लोगों को उल्लू बना के जॉर्जिया लेके जाते हैं, बराबर है। यू कैन चेक जॉर्जिया में कैसी यूनिवर्सिटी मिलती है, जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। यू कैन चेक हाउ बैड द यूनिवर्सिटी इज। बेसिक एक्सपीरियंस ही नहीं है उसको सिखाने का, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके पास, बट प्राइवेट है, 2018 में बनी है। जितने एजेंट को कमीशन देते हैं, एजेंट उल्लू बना के लेके जाता है बच्चों को। अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, जॉर्जिया में है, इसलिए नाम जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। आपका भविष्य यूएस में है, वो कुछ भी बोल के आपको यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के पैसा लूट के यहाँ से भेज देंगे। प्लीज डोंट पुट योर करियर एट स्टेक, go for the right university which is public and number of years of experience चेक करो। और इतना ही नहीं, इसके बाद में भी आप आगे का भी चेक कर सकते हो। एक एक चीज, फॉर एग्जांपल अगर आपको रशिया जाना, लेट मी आस्क हु वांट्स टू गो वेयर। किसी ने क्या सुना है कि कहाँ पे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं? चलो, क्या रशिया में जाते हैं, यूक्रेन में जाते हैं? आपको अगर इंडिया में न मिले, समझो आप 550 क्रैक न कर पाओ, तो आप कहाँ पे जाना चाहोगे? कुछ सुना है आपने? I can show you 43% saying that I want to go to Russia, 7% says I want to go to Georgia, 21% says I want to go to Ukraine, 43% रशिया। हम लोग कोशिश करते हैं रशिया के बारे में जानकारी लेने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है, अपनी एम्बेसी इन रशिया क्या बोलती है, वो देख लेते हैं, क्या एडवाइस दे रही है एम्बेसी ऑफ इंडिया। एडवाइजरी फॉर प्रोस्पेक्टिव इंडियंस। हम देखते हैं इसमें प्रॉब्लम कहाँ है, कुछ तकलीफ तो नहीं होगी हमको जाने में। तो ये देखो आप, तकलीफ क्या होती है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स। अगर मैं रशिया जाता हूँ तो मेरे लिए ये एक चीज संभाल के समझनी पड़ेगी।
अगर मैं इसको नहीं समझूंगा तो कल जाके मैं प्रॉब्लम में आ सकता हूँ। तो लेट मी अंडरस्टैंड। इतने सारे लोग बोलते हैं कि रशिया जा रहा हूं मैं, मेरा गांव वाला भी रशिया गया, मेरा नेबर भी गया, मेरा पहचान वाला भी गया, वो उस एजेंट के थ्रू गया था, वो उस यूनिवर्सिटी में गया था। अपनी गवर्नमेंट क्या बोलती है वो देखो आप। दिस इज द सिंबल which only our government of India can use. Embassy is a place where Indian government office is available in Moscow. They have given certain advisories कि भाई क्या क्या बच्चों को प्रॉब्लम आया, कैसे उल्लू बनाया गया, क्या क्या तकलीफों में से गुजरे बच्चे, ताकि नए जो आए वो उल्लू न बने। पढ़ो आप अभी कैसे उल्लू बना के लेके गए थे। अगर आप रशिया जाते हो, there is a publicity in India about English medium courses in Russian Federation. ये क्या है? पब्लिसिटी मतलब एडवर्टाइजमेंट है। आपको बताया जाता है कि इंग्लिश मीडियम में कोर्सेज हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब है सही में इंग्लिश में नहीं मिलेगा। इन प्रैक्टिस मोस्ट इंस्टीट्यूशंस ट्राई टू टीच यू फर्स्ट 3 years in English medium, and from 4th year they are expected to study in Russian language. This way the students must be prepared for this dual medium of instruction. 3 साल इंग्लिश, 3 साल रशियन। अरे भाई, रशियन यूनिवर्सिटीज को क्या पता नहीं है क्या? क्या वापस आके हमको एक एग्जाम देनी है? अगर मैं 3 साल समझूंगा ही नहीं कुछ भी, तो मैं एग्जाम कैसे दूंगा और लाइसेंस कैसे मिलेगा? मैंने पहले ही बताया था, 52,000 डॉक्टर्स इंडिया में घर में बैठे हैं विदाउट लाइसेंस, उनके पास डिग्री है। इसमें मैक्सिमम लोग रशिया से, क्योंकि जब भेजा गया तब उनको ऐसा बोला गया कि ये पूरा कोर्स इंग्लिश में है। आप समझ गए? जब आपको एडवर्टाइजमेंट आती है, जब आपके मन में नीड होती है, सब जब इच्छा होती है डॉक्टर बनने की, सेमिनार होते हैं, होटलों में बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, लेक्चर देते हैं, आप यूट्यूब पे उसको ग्लूड होके देखते रहते हो, अपनी सपनों की दुनिया में बैठे रहते हो, सच्चाई से बहुत दूर लेके जाते हैं। आगे पढ़ो। Some institutions which claim to have dual medium courses do not even have requisite faculty to teach in English even for the first 3 years. इसका मतलब है ये भी रशियन, ये भी रशियन, 3 साल 3 साल खत्म हो गया। वो कभी पास होने वाला है? अब वो रशिया चला गया, 6 साल तक चुप रहा, क्योंकि एजेंट ने उसको पहले ही साल में यहीं पे लूट लिया 6-7 लाख रुपया लेके। और कोई कोई एजेंट तो पूरे कोर्स का पैसा पूरा 15 लाख रुपया ले लेता है, और वो उल्लू बना के स्टूडेंट दे भी देते हैं, ये बोल के कि अगर आप धीरे धीरे भरोगे तो 18 लाख, और एक साथ में भरोगे तो सब्सिडीज में देके 15। अब उसको पता है कि जाने के बाद में तो कुछ नहीं होने वाला, उसका पूरा का पूरा 15 लाख लूट लिया। आप समझ गए? सो यू हैव टू बी केयरफुल। तो हमने एम्बेसी को पूछा, सर ये क्या है? हजारों स्टूडेंट डॉक्टर बन रहे हैं रशिया में, इतने स्टूडेंट्स हर साल जा रहे हैं, ड्यूअल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंग्लिश में पूरा है नहीं, तो बच्चे लोग, और यही यूनिवर्सिटी आपने मेडिकल काउंसिल के अंदर अप्रूव भी करके रखा है। तो इसका मतलब क्या है? क्या आप सोच रहे हो कि रशियन में पढ़ के आदमी एफएमजी या नेक्स्ट पास कर लेगा? इसका मतलब तो यही हो गया। अगर रशियन में पढ़ के पास नहीं कर सकता तो क्यों क्यों इसको अप्रूवल में डाला है? फाइनली 2019 में एम्बेसी ने दूसरा लिस्ट डाला कि बच्चों को कहाँ पढ़ना चाहिए। अगर आप रशिया का सोच रहे हो तो पहले रेटिंग लिस्ट देखो, रेटिंग लिस्ट ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस इन रशियन फेडरेशन। मेडिकल पढ़ने के लिए रशिया में उसकी पहले रेटिंग देखो। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर की अगर देख रहे हो तो आपको टॉप 4 के नीचे मत जाओ। भले 50 यूनिवर्सिटी दिखेगी रशिया में जो एमसीआई अप्रूव्ड है, आपको सिर्फ टॉप 4 में जाना है, और उसको भी हम लोग यहाँ पे WDOMS पे चेक करेंगे, वर्ल्ड डायरेक्टरी पे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फाइनल कर डालो। दूसरी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वहां पे दूसरा लिस्ट है, वहां पे भी टॉप 4 में ले लो। बस इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है। टोटल मिला के कुछ 48-50 यूनिवर्सिटीज रशिया में एमसीआई की अप्रूव्ड है। टॉप में जाओ। अगर बॉटम में जाते जाओगे, अभी फॉर एग्जांपल आपको मैं बोल रहा हूँ टॉप 4 में जाओ,
आपने बोला कि नहीं सर, मेरा फ्रेंड है ना ऑरेनबर्ग में है, भले 15 नंबर है, मैं तो जाना चाहता हूँ। ओके भाई, वेरी गुड। आप नीचे वाली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो क्वालिटी भी ऐसे ही मिलेगी। ट्वेयर स्टेट मेडिकल अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पे देखो, इंडियन बच्चों ने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं ये बताते हुए कि भाई कैसे उनको उल्लू बनाया गया है। आप सिर्फ टाइप करो फ्रॉड, स्कैम, यूट्यूब के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा फॉर ट्वेयर स्टेट मेडिकल। तो मैं बता रहा हूं पहले से कि जितना नीचे जाओगे ये बशकीर सस्ता सस्ता दिखा के वहां पे फंसाए देंगे आपको। स्मॉलेंस, और एक ऑप्शन बहुत जो इंडिया में बहुत उल्लू बना रहे वाला, पम पम स्टेट मेडिकल, ऐसी सब यूनिवर्सिटीज को उल्लू बना के भेज देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक यूनिवर्सिटी है जो बॉटम में आती है, मारी यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट को भेजा गया। अब ये यूनिवर्सिटी आप वर्ल्ड डायरेक्टरी पे आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअल में वो कितना पुराना है, कब का यूनिवर्सिटी है, क्या ये इसमें जा सकते हैं आप, क्या इसमें आपको इंग्लिश में मिलेगा, आप यहाँ पे पढ़ लो। मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यशकरौला, 2014 की है, अभी तो मुश्किल से एक बैच मुश्किल से निकला है, ये इतनी बुरी हालत में है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को उल्लू बना के डाल दिया। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। 43% स्टूडेंट्स ने बोला सर मैंने सुना है रशिया जाते हैं, मैं भी रशिया जाऊंगा। अगर किसी को फॉलो करोगे तो यही हाल होने वाला है जो सामने दिख रहा है आपको। You will be one among those 52,000 students who have the degree but not have the license because they never could study. Even if they wanted, they could never study. Have you understood now? Getting into MBBS abroad is a very, very tricky thing. If you catch hold of the wrong people, he will screw your career left to right. उमामा बारी बारी, yes of course the cost will be, आपके सामने जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे आप टैप करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है ना। उमामा of course you can study, every college will have different cost, so it all depends on your choice of the country, your living cost will change, your fees will change. You can always get in touch with our counselors, the numbers are all given on your screen right now, so you can definitely। अब मैं आपको एक सिंपल सा चीज मैं बताना चाहूंगा, in the next 10 minutes I'll showcase to you ये कोरोना की जो इफेक्ट है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज आर सेइंग आवर कोर्सेज आर ऑन, आप ट्रैवल करके आ सकते हो, दैट विल बी फर्स्ट प्रेफरेंस। अगर नहीं आ सकते, ऐसी सिचुएशन होगी तो ब्लेंडेड प्रोग्राम दे देंगे। ब्लेंडेड प्रोग्राम का मतलब होता है कि पहला सेमेस्टर आप ऑनलाइन पे करोगे और फिर ट्रैवल करोगे फरवरी के बाद में, तब तक तो सब मामला शांत हो गया होगा। मार्च 30 से 23 को लॉकडाउन हुआ था, एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि एक साल में तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा, तो ब्लेंडेड प्रोग्राम काम आएगा। कोई कोई यूनिवर्सिटी बोल रही है कि हमारे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेलारूस है, फॉर एग्जांपल यूक्रेन अभी बोल रहा है कि हम लोग खोल देंगे, एयर स्पेस खोल रहे हैं, इमिग्रेशन सितंबर से खुल रहा है, एयर स्पेस जुलाई से ही खुल रहा है, so they will all, most of the students will travel accordingly। more than 400 students have already registered their medical seats abroad in different countries, in only developed countries with government colleges, at least 80 to 100 year old, ठीक है, not in फालतू countries like Georgia or Kyrgyzstan and all those things। okay, I hope you have understood। अगर कोई अनक्वालिफाइड है या तो कोई बोले मुझे जाना ही नहीं है, तो वो प्री मेड कोर्स इंडिया में कर सकता है और यहाँ से वो फिलीपींस जा सकता है। So there are different courses for people who want to do it in India। You have to take a call, क्या मुझे इंडिया में ही शुरू करना है या क्या मुझे अब्रॉड में जाना है, क्या मुझे इंडिया की मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो यहाँ पे या तो मेरिट चाहिए या तो मनी चाहिए प्राइवेट के लिए, करेक्ट। ये दो नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन और है। क्या आप इंडिया में प्री मेड करना चाहते हो और फिर फिलीपींस जाना चाहते हो, वो पॉसिबल है, या आप डायरेक्टली अब्रॉड जाके मेडिसिन चालू करना चाहते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर मूड, योर कंफर्ट, योर कन्वीनियंस, योर पेरेंट्स एग्रीमेंट दैट यस नहीं सर अभी तो मेरी बच्ची छोटी है, अभी यहीं पे 2-3 साल रहने दो, प्री मेड खत्म करके जाएगी अब्रॉड तो भी चल जाएगा।
आप समझ रहे हो? या आप फर्स्ट ईयर हो, बच्चा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैवलर है, प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी उसको पता है अब्रॉड जाने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, या रिपीटर है, अब थक गया है, फैटिग है, वो सारे लोग अब्रॉड चले जाते हैं। इस टाइम अब्रॉड तब जाएगा डिपेंडिंग ऑन द इमिग्रेशन सिचुएशन एंड एयर स्पेस बिकॉज ऑफ कोरोना। बस यही चीज आपको को समझनी है। अब फाइनली अगले 5 मिनट में मैं आपको आपके लाइफ के अगले 10 साल बताना चाहूंगा। ये है आपके लाइफ के अगले 10 साल। आपके स्क्रीन के ऊपर जो दिख रहा है, ये ऐसे ही लाइफ आपकी मूव होने वाली है। हम लोग सभी ने देखा कि सभी लोगों को पीजी तक जाना है, किसी को भी सिर्फ एमबीबीएस करना नहीं है। एमबीबीएस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन। पीजी जाने का एक रास्ता है, मुझे अटकना नहीं है एमबीबीएस के लिए। करेक्ट है? चाहे मैं इंडिया में करूं या अब्रॉड में करूं, क्वालिफाइड तो मुझे नीट करना ही है। 12 से नीट क्वालिफाई किया, नीट से अगर 550 के ऊपर आए तो मैं इंडिया में लूंगा, और 550 के नीचे आए नीट में तो मैं अब्रॉड चला जाऊंगा। फालतू का पैसा प्राइवेट कॉलेज में डाल के अभी फायदा है नहीं। तो अब इसके ऊपर से अगर मुझे पीजी जाना है और लाइसेंस देना है, तो हमने देखा नेशनल एग्जिट टेस्ट आपको देना पड़ेगा इंडिया के लिए, या तो यूएसएमएल स्टेप 1 और स्टेप 2 सीखे यूएस के लिए, या तो जर्मन लैंग्वेज जर्मनी के लिए। तीनों प्रोग्राम मोक्ष देता है आपको व्हाइल यू आर स्टडीइंग इन एमबीबीएस। इंडिया का जो सबसे बड़ा स्कैम है, जहां पे इंडियंस बच्चों को जो फंसाया जाया है, वो फिलीपींस है। आपको शॉक लगेगा, बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे, आपको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में टैग करेंगे, आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको फिलीपींस का कॉल ऑफिस में बुलाएंगे, फोन आएंगे, यूट्यूब बोलेंगे, बच्चों कितने खुश बच्चे हैं, देखो वहां पे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है, सारे वहां इंग्लिश लैंग्वेज है, इंडियन वेदर है, इंडियन खाना है, ये सब बता के कैसे आपको उल्लू बनाया जाता है। सो वी वांट टू सिक्योर योर करियर by not sending you, allowing you to go to Philippines or to other small countries like useless countries like Kyrgyzstan or Georgia. We want you to go to the right country, and we have already shown you how to choose the right university. Once you have got that, in case you are not getting it in India, suppose आपको इंडिया में भी मिला तो भी रास्ता तो यही है। अभी मैंने बताया आपको, रास्ता यही है, इंडिया में लो या अब्रॉड में लो। जिसके पास जितना बजट है उसके हिसाब से वो उसका फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। जब लाइसेंस एग्जामिनेशन मिलेगी तो मेरे हिसाब से आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का गारंटीड एमडी और एमएस बन सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि नीट की वजह से अभी आप रुक सकते हो, नहीं रुकता कोई भी। बिंदास बन के नीट क्वालिफाई करो, आप पीजी तक जा सकते हो विदाउट एनी डाउट। पोस्ट ग्रेजुएट, कैन यू इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ एमडी और अ एमएस? You cannot. It's not that easy, but the things that it looks like right now, slowly and steadily you'll become very comfortable with the idea that I will pass this license examination. Okay, let's understand now the final one. What's your budget? On your budget you can finalize your country of selection, कि भाई मेरा फाइनल, मैं यूएस में रहूंगा, मैं जर्मनी में रहूंगा, मैं इंडिया में रहूंगा, पीजी कहाँ करूंगा? So 90% of the people have said yes, we want to go for, we will come back. Our budget is only 20 to 30 lakh rupees, while 30 to 40 lakhs के बीच में 10% है, वो सारे के सारे यूएस जाएंगे। 10% will go to यूएस। आपको मैं बता दूं यूएस में जाने का फायदा क्या है। तो अगर आप जो 20 टू 30 लैक्स वाले हैं, थोड़ा बजट बढ़ा दो, तो आप लोग अपनी लाइफ पूरी सेटल कर सकते हो। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, एवरेज स्टाइपेंड फॉर यूएस फॉर अ फिजिशियन इन, और लेट्स से ड्यूरिंग रेजिडेंसी फॉर यूएस फिजिशियन, पढ़ रहे हो आप, आपके सामने है। अप्रोक्सीमेट स्टाइपेंड आपको $61,200 मिलता है। इसका मतलब है 61,200 इंटू 78 लाख पर, $1 का 78 रुपीज होता है, अराउंड 48 lakhs पर ईयर, मल्टीप्लाई बाय 4 years, करीब करीब 1.9 करोड़ पीजी करने का पैसा है। मेडिकल पीजी करने का पैसा है।
इंडिया में 1.5 करोड़ आपको देना पड़ेगा प्राइवेट कॉलेज में, यहाँ पे आपको मिलेगा। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो तो यूएसएमएल ही करोगे, कोई भी नेक्स्ट करके इंडिया वापस आना नहीं चाहता।